Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। वी हैव ऑलरेडी सीन सम वीडियोस इन दिस सीरीज। You can find those videos in our playlist on our YouTube channel. Today, we are going to solve some questions that are very much prelims oriented and has a high chance that it might come in prelims in future. These questions are related to, you may say, international relations. Basically, the questions that are related to international organizations or agreements. So let's start without wasting any time. The first question is, it is a very pretty basic question. If you know about the international agreements, important conventions related to, you may say, security or related to arms, you must have heard about Wassenaar Arrangement. Okay, let's see. The Wassenaar Arrangement primarily focuses on, first option is standardization of trade practices in diamond industry among participating nations. B, promoting cooperation and coordination in the field of cyber security and information technology. Regulating the export controls on conventional weapons and dual use goods and technologies, and D, facilitating cross border cooperation in combating illegal fishing and protecting marine ecosystem. Now this is a question very straightforward. I have given a very simple question. You can categorize this question in L1. You can even sort out from the options also because Wassenaar Arrangement is something related to security, arms. Okay, so you can answer that question. The correct option is regulating the export control on conventional weapons and dual use goods and technology. Okay, let's see about something about Wassenaar Arrangement. क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। Now the Wassenaar Arrangement is a voluntary export control regime. The arrangement, formally established in July 1996, has 42 members who exchange information on transfers of conventional weapons and dual-use goods and technology. Dual-use goods वैसे होते हैं जिसका सिविल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो वैसे गुड्स का एक्सपोर्ट क्या हो रहा है उसके कंट्रीज के बीच में, उसका इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर किया जाता है। वासेनार अरेंजमेंट सेक्रेटेरिएट इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। नो कभी कभी आपसे सेक्रेटेरिएट भी पूछा जा सकता है, तो इट इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इट हैज 42 मेंबर स्टेट्स कंप्राइजिंग मोस्टली नेटो कंट्रीज है। यहाँ पे नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ईयू स्टेट जो यूरोपियन यूनियन के है उसके भी बहुत सारे स्टेट्स इसके मेंबर है। Participating states are required to report their arms transfer and transfer denials of certain dual-use goods and technologies to destinations outside the arrangement on a 6-month basis. ठीक है, 6 मंथ पे ये इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है कि आपने किसके साथ जो है वो इस तरह का टेक्नोलॉजी शेयर किया है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द अरेंजमेंट इन 2017। 2017 में इंडिया भी जो है इसका मेंबर बन गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रिटी बेसिक क्वेश्चन। इसको हम लोग L1 में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन स्टिल आप जो है यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चन जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो कोशिश करिए सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें, ब्रेनस्टॉर्म करें। कोई ना कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको आप जो है एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट regarding the United Nations Democracy Fund, UNDEF? The first statement is UNDEF was established in 2005 as a United Nations General Trust Fund. Second, UNDF primarily focuses on providing financial assistance for projects that promote democracy and strengthen democratic institutions worldwide. And the third is UNDF subsists entirely on voluntary contribution from the governments. जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
इसका सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। नाउ देखिए अब क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो उसको जनरली लोग एलिमिनेट करने लगते हैं, लेकिन यूपीएससी इन रीसेंट टाइम्स जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको जान के देता है कि आप उसको इजीली एलिमिनेट कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर स्टेटमेंट जिसमें एंटायरली, ऑल इस तरह का अगर वर्ड्स यूज हुआ है तो वो बिल्कुल गलत ही होता है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर जैसे दिया हुआ था यूएनडीएफ सबसिस्ट एंटायरली ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज एक्चुअली राइट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यूएनडीएफ वाज क्रिएटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान इन 2005 एज अ यूनाइटेड नेशंस जनरल ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए फंड क्रिएट किया गया था इन 2005। ठीक है, उस समय यूएन सेक्रेटरी जनरल थे कोफी ए अन्नान। इसके बारे में देखते हैं। यूएनडीएफ फंड्स प्रोजेक्ट्स दैट एम्पावर सिविल सोसाइटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप in democratic processes. The large majority of UNDF funds go to the local civil society organizations and UNDF subsists entirely on voluntary contribution from the governments. Government के द्वारा वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीब्यूशन किया था उसी पर बेस ये फंड क्रिएट किया गया है और उसी के वजह से ये ऑपरेट करता है। तो इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएनडीएफ विच हुज मिशन इज टू प्रमोट डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू लोकल एंड इंटरनेशनल एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यूएनडीएफ इंसेप्शन इन 2005 इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड $32 million to it and remain its fourth largest contributor। मतलब इंडिया टॉप 4 कंट्रीब्यूटर्स में आता है 4th नंबर पे, और अभी तक जो है वो आप बोल सकते हैं $32 million जो है वो कंट्रीब्यूट कर चुका है इस फंड में। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको, अगर आपको जनरली होता है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं आता है जिसमें काफी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट दिख जाए जो कि लगे बिल्कुल कि ये सही नहीं होगा तो उस केस में आप उसको एलिमिनेट करके इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements accurately describes the Artemis program launched by NASA? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट आर्टेमिस प्रोग्राम, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट है, ए है, आर्टेमिस इज अ स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग अबाउट द गोल्डीलॉक जोन ऑफ न्यू स्टार्स। The statement B is Artemis is a lunar exploration program with the objective of landing humans on the moon and establishing a sustainable presence by 2024. C is Artemis is a collaborative initiative between NASA and international space agencies to search for extraterrestrial life in the outer solar system. D. Artemis is a program focused on developing advanced satellite technology for global telecommunication and weather monitoring. आपको बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन है अबाउट आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टेमिस इज अ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विद ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंडिंग ह्यूमंस ऑन द मून एंड स्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल प्रेजेंस बाय 2024। चलिए जानते हैं थोड़ा सा। तो आर्टेमिस प्रोग्राम इज अ जॉइंट एफर्ट लेड बाय नासा अलॉन्ग विद पार्टनर एजेंसीज सच एज ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA जिसको बोलते हैं, एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इट फोकसेस ऑन रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एमिंग टू रीस्टैब्लिश a human presence for the first time since Apollo 17 mission in 1972. ठीक है, the key components of the program include space launch system, the Orion spacecraft, the Lunar Gateway space station, and the commercial human landing systems. The program primarily objective is to pave the way for the future human missions to Mars by establishing a permanent base on the moon. Okay, the Artemis program holds the potential to make human missions to Mars more feasible by utilizing the moon एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो है मार्स के बारे में, मार्स फ्यूचर में मार्स पे लैंड करना है बाय यूटिलाइजिंग द मून एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर हमें आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, चाहे वो टेनिस हो, विंबलडन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीजों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी भी इवॉल्व कर रहा है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा आपको इसमें फोकस नहीं करना है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। विच कंट्री हैज वोन द फीफा वर्ल्ड कप मेन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? फर्स्ट है जर्मनी, बी इटली, सी ब्राजील एंड डी अर्जेंटीना। तो आपको बताना है किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप मेन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स जीता है। इसका सही ऑप्शन है ब्राजील। ब्राजील ने जो है वो 5 टाइम्स वर्ल्ड कप जीता है। ब्राजील हैज वोन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स and has tournament total of the 5 times. They secured their first World Cup victory in 1958 and followed it up with wins in 62, 70, 94 and 2002. Brazil is known for its rich footballing history
and has produced legendary players who have contributed to their success in the World Cup. तो यहाँ पर एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं. The last question is consider the following statements regarding H1B visa of United States. ठीक है, H1 वीजा के बारे में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर. स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको. The first statement is the H1B visa category enables employers to sponsor highly educated foreign professionals to work in specialized occupations that require a minimum of bachelor's degree. And the second is the initial duration of an H1B visa is 5 years. It may be extended. तो आपको बताना है which of them are incorrect की बात हो रही है. यहां पर बात हो रही है incorrect, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे करेक्ट, कहीं पे इनकरेक्ट आपसे पूछा सकता है, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो वही जल्दी से बताइए. इसका सही ऑप्शन है 2. ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, जो गलत है वो सिर्फ आपका स्टेटमेंट 2 है. चलिए थोड़ा सा जानते हैं H1B वीजा के बारे में. तो H1B वीजा इज अ टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी. इट अलाउज एम्प्लॉयर्स टू हायर हाईली एजुकेटेड फॉरेन प्रोफेशनल्स फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस. मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, तभी आप H1B वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं. ठीक है, कॉमनली यूज इन फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज. इनिशियल ड्यूरेशन इज 3 years. यहां पर देखिए जो 5 years दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली यहां पर इनिशियल ड्यूरेशन जो है वो 3 years होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और एक्सटेंशन भी किया जा सकता है. कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस ने एक उन्होंने एनुअल कैप बनाया था कि 65,000 वीजाज वो एक साल में देंगे विद एन एडिशनल 20,000 फॉर मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स फ्रॉम यूएस इंस्टीट्यूशंस. तो उनका कुछ सर्टेन कैप उन्होंने रखा है कि इतना ही ज्यादा, मतलब 65,000 वीजाज ही आप एक साल में इशू कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ और वीजाज हैं जो कि बहुत फेमस है रिगार्डिंग यूएस. B1 एंड B2 वीजा. तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या विजिटर्स वीजा कैटेगरी फॉर टेम्पररी एंट्री के लिए इसको यूज किया जाता है. B1 है इज फॉर बिजनेस पर्पस, B2 इज फॉर टूरिज्म एंड B1/B2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जनरली रिक्वायर्स एन इंटरव्यू विद सम एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन एज एंड एप्लीकेशन टाइप. इसका जो इंटरव्यू होता है आपको पता है यूएस एम्बेसी के पास. अलाउज फॉर मल्टीपल एंट्रीज एंड इज यूजुअली इशूड फॉर 10 years. मैक्सिमम स्टे पर विजिट इज अप टू 6 months एंड नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क इन द यूएस. ठीक है, इस पे आप जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इस वीजा पे, उसके लिए आपको H1B चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे अबाउट दी डिफरेंट वीजास ऑफर्ड बाय यूएसए. तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन देखा जो कि रिलेटेड है आपसे इंटरनेशनल, आप बोल सकते हैं अफेयर्स या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे. आपको कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. इसी तरह से आपका धीरे धीरे नॉलेज बेस इंक्रीज होगा. वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो. तब तक थैंक यू.